Yes, good morning, all of you. Good Am I morning, sir. able to Good morning, everyone? sir. Okay, listen here, guys. Today we are going to solve the problem which is in front of you, which is on the screen. Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, Okay, sir. good to know. Yes, sir. Now see here, guys. In this example, okay, all the things, maybe nearly all the things are known to us. How to deal with that? We already have gone through it. The new thing, quite new thing over here we are facing. It's like this. ये कुछ तो नया वाला कंसेप्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट. वी हैव टू जस्ट गेट व्हाट इज इट. ओके, यहाँ पे क्या हुआ? इन द क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस एट हिंज ए एंड रोलर बी. ओके, तो हिंज इज एट अ पॉइंट ए, तो क्लियर हुआ हम लोग को. इट इज विजिबल ऑल्सो एंड इन द क्वेश्चन ऑल्सो इट इज शोन टू अस, इट इज given to us. And at a point B there is a roller support. Here are the rollers, so on the basis of that also we can identify here is a roller support. Okay, and it is nothing but the hinge support. Okay, for that we know what reactions we have to put over there. Okay, guys, so just simply we have to just start to solve it. We have to just draw the FBD for that. Okay, guys, so what we are supposed to do over here, one horizontal line. Okay, in that horizontal line just we have to show the external forces if any external forces are there. Now see, before that we have not completed the component diagram. Okay, तो जो horizontal beam जो है तो मैंने ए बी करके शो किया. बट एट हियर वन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो देयर. डीईएफ करके एक स्ट्रक्चर है. ओके, इट इज एट हियर, ये अबाउट ये पॉइंट के ऊपर ये एग्जिस्ट कर रहा है. Okay, so what we can do for that? Okay, simply एक vertical line and एक incline horizontal line. Okay, in this way we have to just represent it. It's nothing but the D, E and F. Okay, okay, and at a F point one force is there. वो तो अभी हम लोग बाद में मतलब अभी जैसे हम लोग फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं वैसे तभी स्टडी करेंगे. Now see guys, in this diagram we have to just identify what are the different external forces acting on the component. एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से एक्ट कर रहे हैं? तो देखो ये 30 न्यूटन वाला 25. जो फोर्स है एक्टिंग एट अ पॉइंट एफ. ओके, तो यहाँ पे मैं उसको एज इट इज शो कर देता हूँ. ओके, 30 न्यूटन. ओके, एंड हाउ मच इज द एंगल फॉर दैट? उसका एंगल कितना? 40 डिग्री. हॉरिजॉन्टल से 40 डिग्री के ऊपर वो काम कर रहा है. नॉट सॉरी, इट्स अ 40 40 degree. डिग्री. यस, 40 डिग्री. ओके, व्हाट नेक्स्ट? उसके डायमेंशंस वगैरह जो दिए हैं, इट्स नाउ ऑप्शन, चलो ऑप्शनल. तो फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख, इट इज नथिंग बट द 4 मीटर.
ओके एंड यहाँ पे 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर वन मोर फोर्स इज एक्टिंग विच इज 25 25 kilonewton. न्यूटन acting completely downward. Okay, Sir, kilonewton. 25 किलो न्यूटन. ओ यहाँ पे भी किलो न्यूटन है. Okay, here also it is किलो न्यूटन. Okay guys, what next? Thereafter, after this, here the UDL is given to us. Okay, with the representation we can easily understand. Here is nothing but the UDL. I am talking about these guys. है ना, ये क्या है? It's a UDL. UDL का दूसरा नाम क्या है बेटा? What is the Rectangular another name force. of UDL? Rectangular force. Rectangular load. Okay, Angular. rectangular load. We have to convert it into a point load. Okay, rectangular load का जो point load बनता है, it is acting at a perfect center. Okay, वो जो rectangle रहेगा उसके perfectly center में वो act करेगा. Okay, तो कहाँ पे act करेगा? उसके exactly center में act करेगा. 2 meters distance. Okay, obviously distance पहले उसका magnitude लिख देते हैं. कितना आएगा magnitude? 20 y kilonewton. into 5 into 4. 20 20 kilonewton. kilonewton, isn't it? Yes, sir. Okay, Yes, and sir. उसका position कहाँ पे guys? Position is here. 2 meter. 2 meters. Okay, 2 मीटर के ऊपर उसका position है. Obviously बच्चे का distance कितना? 2 meter. 2 meters. 2 मीटर. Okay, and here it is also given 2 मीटर. Okay, clear? हाँ. Yes, sir. After this, what we need to represent over here, you have to just represent the Reaction. reactions. Okay, अभी हम लोग reactions यहाँ पे show कर देंगे. So let's start with the point A. Point A, what kind of support is there? Here is a Hinge hinge support. Hinge Okay, support. तो hinge support obviously यहाँ पे कितना reaction आएगा? One reaction दो. आएगा, correct है? 2 दो reactions. reaction. Exactly. Sir, vertical and Right, guys. Horizontal There and will vertical. be two reactions. Okay, so point A है तो हमने हमें कैसे लिखना है? horizontal के लिए HA लिखना है. Point sir, voice break हो रहा No, sir, A के clear. यहाँ पे है clear है VA लिखना है. Okay, two reactions will be there, and at a point B there is a One One reaction. roller reaction. here only Vertical. one reaction. Okay, तो ये VB लिखेंगे तो भी चलता है, बट डायरेक्टली वो क्या हो जाता है? RB. रिएक्शन बी पॉइंट होता है ना, तो उसको मैं डायरेक्टली आरबी लिख देता हूँ. ओके गाइस, एंड यहाँ पे ये तो चीज पता है हम लोग को कि ये दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला है. यहाँ पे एक आरबी बन जाता है, वो तो हम लोग बाद में फाइंड आउट कर देते हैं. ओके, ये दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला ये ऐसे आरबी यहाँ पे शो कर सकते हैं हम लोग. नॉट आरबी, इट्स आर ए. ओके, ये तो बाद वाली बात है. जो थीटा जो बनेगा उसका इट विल बी थीटा ए. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट. What we are supposed to do for this, simply we have to just apply the equilibrium conditions. So equilibrium condition, sum of horizontal force is equal to 0. Okay, guys, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल हुआ है अपने लिए. ऑलरेडी वो सिंपल ही था, बट यहाँ पे एक इसका डिफिकल्टी था कि ये इसको कैसे कंसिडर करें. तो मैं इसका आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, एंड यू गाइस यू कैन स्टार्ट टू सॉल्व इट. हाँ, तो व्हाट वी कैन डील विद दिस है 30 किलो न्यूटन के लिए कैसे डील करना है, चेक इट. उसका हम लोग को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रॉ करना है यहाँ पे. ओके, ऑब्वियसली वो रहेगा तुम्हारा कॉस कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. ओके, दो कंपोनेंट में उसको डिवाइड करना है और ये दो कंपोनेंट कंसीडर करके आपको उसका मोमेंट निकालना है. ओके, एट द सेम टाइम यू हैव टू जस्ट कंसीडर व्हाइल considering the horizontal and vertical forces also. Okay, so you have to just take a component of this 30 kilonewton. Guys, clear हो गया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Students who Yes, got sir. the things, they can start to solve. I am also solving here simultaneously. Sum of horizontal force is equal to 0, starting with this. So it is देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ. 30 किलो न्यूटन के फोर्स से स्टार्ट कर लेता. सो इट इज गोइंग इन अ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, सो माइनस 30. ओके, cos 40 degree. Okay, after that any horizontal force? No.
नो एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सेप्ट HA. HA is going rightward, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ प्लस HA is equal to 0. तो here I got the value of HA. Okay. Sum of vertical force is equal to 0. So for this, I'm starting with the RB. RB is going upward directions. So RB, thereafter 30 ka sine component minus 30 sine 40 degree. Thereafter minus 25. Thereafter minus 20 kilonewton जो force है. And thereafter plus VA. Okay, is equal to 0. Here are two unknowns, so it cannot be solved. Okay, so we need to go for a next equation, next equilibrium condition. Moment about point A is equal to 0. Okay, तो starting with point B again. Point B के यहाँ पे जो RB act कर रहा है उससे start कर लेते हैं. It will rotate the system in a anti-clockwise direction. So we are taking it as a positive. RB into उसका डिस्टेंस कितना आएगा, आरबी का जो टोटल डिस्टेंस आएगा 4 plus 6 10 meter, right guys? 10. Okay, after that I have to take care of 30 का 30 के जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में ध्यान रखना है. तो 30 का पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लेते हैं. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैसे घुमाएगा, अबाउट पॉइंट ए इन एंटी क्लॉकवाइज. यस, तो वो आएगा पॉजिटिव. पॉजिटिव 30 का कॉस कंपोनेंट 30 कॉस 40 डिग्री. ओके, और इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 1.5. पॉइंट ए से 1.5. गेटिंग इट ना, ये 1.5 उसका डिस्टेंस है. ओके, so into 1.5 meter. Okay, now take care of its vertical component. Vertical component will rotate the system in a clockwise direction about point A. तो उसको मुझे क्या लिखना है, we have to just write minus 30 का 30 sin 40 into उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 8. वर्टिकल जो है sin कंपोनेंट उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा. Okay, so up to this point it is 6 meter. From point A up to this it's 6 meter. 6 plus this 2, it will be a 8 meter. Okay guys. हाँ, तो we have considered both the components. Now we have to just move to this 25 kilonewton. Okay, so 25 kilonewton will be rotating your system in a clockwise direction again. So I have to take a minus sign. So minus 25 into distance 4. 4, right? Yes. Okay, thereafter again the 20 kilonewton वाला जो force है, it will rotate the system. minus 20 Exactly, minus 20 into 2. Okay, finish. Any external moment is given. External कोई moment couple दिया है system में, check करेंगे. No, sir. No sir. तो यहाँ पे अपना moment का equation finish हो गया. Now we should, here we can get the value of is equal to 0. Okay, here we will get the value of RB. RB का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हम लोग को. Okay, putting in equation 1. Okay, we will get the value of VA also. Okay, तो HA VA का वैल्यू हम लोग को मिल गया. Now we have to just find out the RA. Okay, RA निकालना है और थीटा निकालना है. चलो ठीक है. Giving you 3 minutes. In a 3 minute you need to get all the answers. किसी ने निकाला है तो किसी ने सॉल्व किया है, तो you can tell me the values. Let me check in the solution then. Sir, HH का Sir, value HH value 22.98. 22.98 HA का वैल्यू कितना मिला आपको, 22.98. 22.98. Let's check it guys.
Okay, currently I'm not getting the page of solution. चलो ठीक है, बाकी के वैल्यूज सॉल्व करो तब तक. लेट मी कैलकुलेट इट. सर हो गया आरबी का -25.97. सर प्लस आएगा, प्लस प्लस आ रहा है, प्लस 25.97. 25 हाँ, प्लस प्लस. ओके ओके, देखो आई गॉट द 25.97. वैल्यूज ऑफ एच ए का वैल्यू मुझे मिला 22.98. यस सर, Yes, Yes, sir. ओके, sir. आपको भी सेम वैल्यू मिला है. Yes, sir. यस हाँ, हाँ sir. Okay, and after that, I got the value of RB 25.98 going upward. Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर. sir. यस सर Okay. यस सर. अच्छा, thereafter let me check the value of VA 38.30 38.3. kilometer. 31 Yes. किलो न्यूटन. Yes, sir. Yes, yes, Upward yes. direction. Obviously, all the values are in kilonewton. Okay, वो VA का वैल्यू आपको कैसे मिला? अपवर्ड मिला, डाउनवर्ड मिला, पॉजिटिव, Upward. नेगेटिव? पॉजिटिव. Upward. Upward. Yes, 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 positive 38.30. Okay. ठीक है, let me write it down over here. Value of RB I got 25.98. 98 kilonewton. Okay, RB is going in upward direction. Okay, thereafter I got the value of VA 38.30 going in a upward direction. Firstly, need to write down the unit. Okay, and चलो ठीक है, आरे कैलकुलेट किया आप लोगों ने? हाँ सर, 44. यस सर. 44.73. 44.67 kilonewton. ये एच का वैल्यू मिला है किलो न्यूटन. इट इज ऑल्सो इन अ मूविंग इन अ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, राइट? राइटवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव मिला है. ओके, यस सर, चलो ठीक है. और आर ए का वैल्यू मिला 44.67. 73. 67 किलो न्यूटन. And theta is 59.03. 59.03. 59.03. Okay, fine, fine, absolutely fine. 03 डिग्री. ओके, थोड़ा सा 0.1 का एरर उधर उधर चल जाता है. इट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, नो इशू. ओके, लेकिन ये 59 का 62 हो गया तो कंप्लीट नहीं चलेगा. 59 का 62 हो रहा है तो इट विल बी रॉन्ग आंसर. गेटिंग इट गाइस? गॉट द सॉल्यूशन? यस सर, Yes, sir. यस सर. ओके यस ओके. सर. देखो, मैं थोड़ा इंटेंशनली Yes, ये बीम्स के प्रॉब्लम्स के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूँ. एग्जाम में ना ये 8 मार्क्स जो है, 8 मार्क्स इन योर हैंड. ओके, श्योरली ये प्रॉब्लम एग्जाम में आने वाला है. सो आउट ऑफ 80, 8 मार्क्स मतलब इट्स अ ग्रेट डील, है ना? 10% मार्क्स आर देयर. ओके, सो एवरी स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम परफेक्टली ये प्रॉब्लम को टैकल करना है, मतलब करना ही है. गेटिंग इट? Yes, sir. एंड आई होप यू विल डू इट. यस सर. हाँ, Yes, sir. तो अभी एक छोटा सा Yes. वैरायटी है इसमें, वो देख लेते हैं. गाइस, आई एम जस्ट पुटिंग दिस एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू फॉर 30 सेकंड. ओके, तो 30 सेकंड में जरा कोई तो आई विल आस्क टू एनीवन. ओके, फर्स्ट आई विल आस्क टू एनीवन कि इसके सॉल्व करने के स्टेप्स कैसे रहेंगे. ओके, 30 सेकंड नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम देता हूँ, 1 मिनट में टाइम देता हूँ इसके लिए. 1 मिनट में बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा. अदरवाइज जिसको पता है फिर उसको बताने का मौका मिलेगा. ओके, चलो 1 मिनट ऑब्जर्व करो एग्जाम्पल को और मुझे उसके स्टेप्स बताना है कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल को. इट्स लिटिल काइंड ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर यू गाइज.
हिमेश माड़ी, हिमेश. Sir, हाँ, हिमेश, आई एम आस्किंग टू यू, हाउ यू गॉट हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाँ सर वो समझा नहीं। समझा नहीं? नहीं सर। चलो ठीक है हिमेश, तो मुझे बताओ कि ये प्रॉब्लम का तो स्टेप समझा क्या नहीं आपको? हाँ सर थोड़ा बहुत इसमें समझा। प्रीवियस वाला प्रॉब्लम थोड़ा बहुत समझा, सर मेरा पूरा नहीं तबीयत समझा प्रॉब्लम? खराब है। हाँ, सर नॉट फीलिंग वेल इसलिए। अच्छा तबीयत ठीक नहीं है. हम्म चलो ठीक है ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, बाद में थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेना. ओके सर। ओके, 20-30% तो समझ में आ गया ना ये प्रॉब्लम? हम्म ओके ठीक है चलो. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. यस सर। हाँ ठीक है. सो चलो ठीक आहे. प्राची कुलकर्णी. Yes, sir. हा प्राची, तुला कळलं कसं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा? हॅव यू अंडरस्टूड? सर आधा आधा समझा है. एग्जैक्टली. चलो ठीक है ना, 50% तो सक्सेस मिला तो भी बहुत बड़ी बात है. हाँ बताओ क्या क्या समझ में आ गया? सर ए में हिंग सपोर्ट है तो वहां पे 2 रिएक्शन आएंगे. उसके 4 बाद रिएक्शन? फिर दो दो 2. 2 रिएक्शन, हाँ हाँ ओके. सर देन फिर डी पे रोलर वाला है, रोलर सपोर्ट है तो वहां पे एक रिएक्शन आएगा वर्टिकल वाला से. एंड सी पॉइंट पे भी 2 रिएक्शन आएंगे, वहां पे भी हिंग सपोर्ट है. एंड व्हाट अबाउट पॉइंट बी? हाँ सर वो वाला नहीं समझा, बी पॉइंट वाला. हाँ सी, यू आर टेलिंग मी कि एट अ पॉइंट डी देयर इज अ रोलर सपोर्ट, राइट? हाँ है ना? सर बी पे भी रोलर सपोर्ट आएगा ना. एग्जैक्टली गाइस, एग्जैक्टली. ओके पायल, यू सेड राइट. यस सर. नाउ सिया, यहाँ पे क्या होगा कि like a D there is a roller support at in a similar way at a point B there is a roller support. Okay, तो क्या करना है हमें कि we have to just divide the diagram in a 2 part. Okay, तो we have to draw the FBD separately for beam AB and beam CD. ये दोनों के लिए अलग अलग FBD हम लोग को ड्रॉ करना है. तो देखते हैं अभी क्या होता है. Previously we are just drawing it for the beam AB. ओके, बीम ए बी के लिए हम लोग एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ओके, तो पहले इसके बारे में सोचेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बारे में सोचेंगे. नाउ सी गाइस, जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन फोर्सेस यहाँ पे शो करते हैं. एबी के ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली फोर्स शो किया हम लोग को 75 किलो न्यूटन वाला. Isn't it 75 kilonewton? यस सर. Yes, sir. सर Okay, it is at the distance of how much? 2 मीटर. यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर वो एक्ट हो रहा है. Getting it? And thereafter we have to take care of the reactions. Okay, ये टोटल इसका डिस्टेंस है, वो भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ. It's a 3 मीटर. Okay, and we have to take care of reactions. So let me show the reactions here. हाँ, तो at a point A इट्स अ हिंज सपोर्ट, तो 2 रिएक्शंस आएगा, एच ए हो गया. एंड एक वर्टिकल रिएक्शंस भी आएगा, इट विल बी अ वी ए. ओके, ये 2 रिएक्शंस आएगा. क्लियर? ओके, नाउ जंपिंग टू द पॉइंट बी. पॉइंट बी के यहाँ पे क्या है? इट्स अ रोलर सपोर्ट. ओके, वो किससे कनेक्टेड है, वो कैसे कनेक्टेड है, वो बाद वाली बात है. फिलहाल तो हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे? रोलर सपोर्ट दिख रहा है ना. तो जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. ओके, ये भी हो गया हमारा आर बी. गेटिंग इट गाइस? नाउ चेक इट. ओके, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, एट द सेम टाइम वी विल जस्ट ड्रॉ द एफबीडी फॉर बीम सीडी. ये सीडी के लिए भी हम लोग एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं गाइस. ये हो गया सीडी यहाँ पे. चल ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ. ये हो गया उसका पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट डी. ओके, एंड हियर इज अ पॉइंट बी. ओके, पॉइंट बी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा आपको समझ में आएगा अभी. उसके डायमेंशन में नोट डाउन कर लेता हूँ.
Okay, it is 2 meter and it is 3 meter. Okay. What next? अभी देखो. Any external force is there on a beam CD? Any external force is there? No. No, sir. Okay. Uh, Let me just elaborate few things about this point B. ये point B के यहाँ पे क्या होने वाला है? At a point B देखो, it is in a contact with the just let me talk about this roller. Okay, यहाँ पे जो roller है ना, ये roller is in contact with beam AB and CD as well. Okay, तो ये क्या करेगा? It will react on both. It will give reaction to both beams. ओके, दोनों को रिएक्शन देगा वो. जैसे ये यहाँ पे रिएक्शन दे दिया ना उसने अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, अभी चेक करो यहाँ पे क्या होगा रे, इक्वल एंड ऑपोजिट हम लोग को रिएक्शन मिलेगा. हियर वी विल गेट अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ओके, ये आरबी जो है ना, आरबी, ओके, तो ये जितना हो एबी के ऊपर वर्टिकली एक्ट करेगा, वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा एबी के ऊपर, उतना ही आरबी जो है इट विल एक्ट डाउनवर्ड, इक्वल एंड ऑपोजिट. ओके, तभी जाके तुम्हारा जो सिस्टम है वो बैलेंस हो जाएगा. गेटिंग इट? मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. आरबी जो है वर्टिकली जो जितना मैग्नीट्यूड से काम किया सेम मैग्नीट्यूड से काम करेगा डाउनवर्ड. ओके, इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो हियर वी कैन राइट दैट कि आरबी जो है ना, आरबी इज एक्टिंग एट अ बी पॉइंट, ओके, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ आरबी ओनली. गेटिंग इट? ये क्लैरिटी मिला यहाँ पे Yes, sir. रिगार्डिंग आरबी? Yes, sir. ओके, तो अभी जो रिमेनिंग जो रिएक्शन है वो शो कर देते. जैसे कि पॉइंट सी, इट्स हिंज सपोर्ट. हिंज सपोर्ट तो है, तो दो रिएक्शन बताना है. ये हो गया एच सी और ये हो गया वी सी. ओके, एंड पॉइंट डी देयर इज अ रोलर सपोर्ट, तो ओनली वन रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन आर डी. क्लियर है? ओके, अभी एग्जांपल सॉल्व कैसे करना है देखो. ऑलरेडी गॉट अ क्लियर आइडिया टू. ऐसे सिंपल अभी ए बी के बारे में अगर बात करेंगे तो क्वाइट सिंपल है. ओके, पॉइंट एच ए के अबाउट मोमेंट निकालेंगे. पॉइंट एच ए के अबाउट मोमेंट निकालते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे शो हो रहा है कि आरबी जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आरबी इनटू फाइव है ना, माइनस एक आरबी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा. आरबी इंटू फाइव माइनस 75 इंटू 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम लोग को में इसका वैल्यू मिलेगा. ओके, ये आरबी का वैल्यू मिलेगा मोमेंट से. गेटिंग इट? एंड बाकी के इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो एच ए वी एंड एच ए का और वी ए का भी वैल्यू मिल जाएगा इन ए बी बीम. ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ से आरबी का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग इन सेकंड डायग्राम. ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ये रिमेनिंग जो रिएक्शन है वो भी मिल जाएंगे. ओके, चलो ठीक है. स्टेप बाय स्टेप द स्टूडेंट्स हु गॉट द क्लियर आइडिया दे कैन स्टार्ट टू सॉल्व. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द क्लियर आइडिया? इसको कैसे डील करना है, इसके साथ कैसे सॉल्व करना है, समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Students who got the clear idea, Yes, sir. definitely they can start to solve it. Okay, sir. Okay, remaining student just pay attention here. I'm telling you कि इसको solve कैसे करना. Okay. देखो, listen here guys, let me tell you one thing. All the time not necessary to start with the sum of horizontal force. You can start with the sum of vertical force also. You can start with the sum of moment also. Okay, it's completely depend on you. But important thing is that here I need to write down FBD AB लिख देते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिख देते हैं FBD CD. Applying equilibrium conditions.
Sum of moment about point A is equal to 0. ओके, अगर ये इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ RB into 5 minus 75 into 3 is equal to 0. Here I will get a value of RB. And thereafter sum of horizontal force is equal to 0. Then writing down its values. Horizontal force में तो देखो कोई भी extra force नहीं है, but only HA is there. Okay, तो HA is equal to 0. Okay, now vertical force का summation is equal to 0. Then वर्टिकल फोर्स के बारे में लिखेंगे तो आरबी का वैल्यू यहाँ से ऑलरेडी मिलेगा हम लोग को, तो आरबी माइनस 75 प्लस वी ए इज इक्वल टू 0. आरबी का वैल्यू ऑलरेडी ऊपर मिल गया हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिलेगा वी ए का. गेटिंग इट गाइस? ओके, तो मतलब वी ए मिला एंड एच ए मिला, तो वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ आर ए. आर ए का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा. रिएक्शन एट ए पॉइंट क्लियर. ओके, एंड रिएक्शन एट बी पॉइंट आल्सो क्लियर. तो ये दो रिएक्शंस मिल गया हम लोग को. नाउ अभी यहाँ पे जो रिएक्शंस मिलने वाला है आरबी रिएक्शन, उसका यूज करना है हम लोग को नेक्स्ट वाले डायग्राम में. ओके, आरबी का वैल्यू जो भी मिला हम लोग को यहाँ पे लिख देंगे. नाउ अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर दिस. ओके, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया इक्विलिब्रियम कंडीशंस. सो तो यहाँ पे भी मैं मोमेंट से स्टार्ट कर देता हूँ. मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट है ना, टेकिंग आरडी विल रोटेट द सिस्टम अबाउट पॉइंट सी इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आरडी की बात कर रहा हूँ. आरडी इंटू डिस्टेंस है उसका हाउ मच, 5 मीटर. ओके, आरबी विल रोटेट द सिस्टम इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसको माइनस लिख देता. माइनस आरबी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को यहाँ से मिलेगा, तो ये आरबी इंटू उसका डिस्टेंस रहेगा 2 मीटर. ओके, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ओके, तो हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आरडी. ओके, आरडी मतलब रिएक्शन एट डी मिल गया हम लोग को. नाउ जस्ट यू हैव टू अप्लाई another equilibrium conditions. Only one horizontal force is there. It is nothing but the HC becomes 0. Talking about vertical force, RD going upward minus RB, then plus VC. ओके, यहाँ पे RD का वैल्यू मिल रहा है हम लोग को. RD का वैल्यू वी आर गेटिंग इट हियर. ओके, ये RD का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. ओके, RB का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो we will get the value of VC over here. Okay, okay, we got the HC and VC, then we have to write down RC. So at the end we will have the reactions at all the points. You have to show it like this, and RA is equal to RB भी लिख देंगे चाहिए तो RC is equal to and RD is equal to. Okay, just you have to write down all these reactions over here at the end.
गाइस सॉल्व किया प्रॉब्लम है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, फटक से इसके वैल्यूज बताओ मुझे, वैल्यूज बता के इसको फिनिश कर लेंगे। आरबी का वैल्यू कितना आया? 45 45 kilonewton. 45 किलो न्यूटन। Yes, sir. ओके, आरबी गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? Yes, sir. ओके, एंड Yes, sir. वीए का वैल्यू कितना मिला? 30 kilonewton. 30 kilonewton. 30। Yes. 30 किलो। Yes, sir. VA will be acting obviously in a vertical direction. Okay, आरे का तो भी obviously आरे का वैल्यू कितना मिलेगा? 30 kilonewton. 30 kilonewton. Yes. 30 kilonewton. ओके, ये आरे फाइनली आपका कैसे काम करेगा? वर्टिकली काम करेगा ना? हॉरिजॉन्टल तो Yes, जीरो है sir. ना, एचए तो जीरो है। ओके, चलो ठीक है, यहाँ पे फिर आरडी का वैल्यू कितना मिला फाइनली? 18. 18 kilonewton. 18 kilonewton. 18 kilonewton. 18? 18. Yes, sir. 18. 18. किलोमीटर। Upward ओके, direction. आरडी इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। Upward ओके, direction. thereafter VC कितना मिला? 27 27 27 kilonewton. kilonewton. 27 kilonewton. 27 किलोन्यूटन, इट इज ऑल्सो गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आरसी का भी वैल्यू हो जाएगा 27 किलोन्यूटन। 27 kilonewton. ओके फाइन। किसको क्लैरिटी है, क्लैरिटी चाहिए क्या? मैंने डायरेक्टली आरसी 27 क्यों लिख दिया? देखो आरसी का फॉर्मूला क्या आएगा? इनटू ब्रैकेट HC plus VC Plus square. VC square. तो अगर ये HC 0 होता है तो क्या होगा? ओनली VC स्क्वायर रह जाएगा। तो ऑब्वियसली ये VC Square will root be cancel हो जाएगा. ओके, एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन तो जीरो, मतलब सॉरी HC इज जीरो यहाँ पे। ओके, तो क्या होने वाला? HC इज जीरो, तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन जो है, किसका? VC का डायरेक्शन लीड करेगा आरसी के डायरेक्शन के लिए। ओके, तो देयर आई हैव पुट द डायरेक्शन अपवर्ड। ओके, सेम इज हैपन इन द केस ऑफ ए आल्सो। ओके, ए के बारे में भी सेम केस हुआ है। ओके, तो फाइनली आपको वैल्यू यहाँ पे पुट देना है, योर सम इज ओवर। सर इसका Got लास्ट it, में yeah? पोजीशन करना है क्या? पोजीशनिंग क्या? करना है इसका? पोजीशनिंग ऑफ रिजल्टेंट। देखो गाइस, पोजीशन का कैसा है कि ऑलरेडी इतना सब सम सॉल्व करने के बाद है ना, पोजीशन इट्स मैं तो बोलूंगा कि ऑप्शनल है। आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना है तो भी नहीं कर सकते हो। गेटिंग इट? तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे उसका पोजीशन देखा है ना, तो एक शॉर्टकट मैं तुम लोग को बता देता हूँ, है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि जो पॉइंट ए और हो गया ना, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी हो गया, है ना, तो डायरेक्टली वहां पे ही लिख देने का। पॉइंट ए हो गया ना, तो जहाँ पे व्हेनेवर वी विल राइट डाउन द आंसर्स, है ना, ये आंसर्स लिख देंगे हम लोग। तो इन अलोंग विद दैट ओनली वी विल राइट डाउन। ओके, आर ए लिख दिया हम लोगों ने 30 किलो न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऐसे शो करने का, पॉइंट ए गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, आर ए। ओके, आरसी कितना मिला? 27 किलो न्यूटन। ओके, ये भी ये पॉइंट आपका सी, और ये हो जाएगा ऐसे आर से। सर ये सम में नहीं किया तो भी चलेगा ना पोजीशनिंग? हाँ, यहाँ पे नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, और जो दूसरा वाले सम्स थे ना, लाइक ये वाला सम हो गया। तो ये वाले केस में क्या करने का? डायरेक्टली आप क्या करो, एफबीडी रहेगा ना, एफबीडी में ये शो कर दो थीटा ए एंड आर ए। इन द एफबीडी ओनली यू शो इट गाइस लाइक थीटा ए एंड आर ए। तो मतलब उसका अलग से आपको ड्रॉ शो करने की जरूरत नहीं है फिर, है ना। फिर भी शो करना भी है, स्टिल यू वांट टू शो इट, देन तो फिर क्या करना है आपको? यू हैव टू जस्ट पुट अ पॉइंट ए। ओके, एंड ये तुम्हारा रिएक्शंस इज एक्टिंग लाइक दिस। ओके, तो आर ए इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना है जो भी आर ए का वैल्यू है, एंड जो थीटा है, ओके, ये थीटा है यहाँ पे लिख देना है। ओके, 59.03 डिग्री, एंड आर ए का वैल्यू 44.67 किलो न्यूटन। ओके, इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट ओवर देयर। गेटिंग इट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 44.6। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये सॉल्व हो गया। हाँ चलो ठीक है,
तो इसका तो मैं अभी आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन एनीथिंग फॉर दिस। ओके, ये तो पूरा आपको सॉल्व करना है एक्सेप्ट वन थिंग, एफबीडी। बस मैं यहाँ पे उसका ड्रॉ करने के लिए हेल्प करूंगा आपको। चलो एफबीडी भी नहीं ड्रॉ करता हूं मैं, है ना। जस्ट आई विल टेल यू वन थिंग, जो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें मुझे क्या लग रहा है कि हियर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी एट दिस पॉइंट। ये जो एग्जांपल है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी एक पॉइंट के ऊपर है, इट इज एट द पॉइंट एफ। ओके, द रोलर सपोर्ट इज शोन इन अ 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है गाइज? ओके, मैं बस पॉइंट एफ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बाकी कंप्लीट एग्जांपल आप सॉल्व करने वाले हैं। तो एफ के यहाँ पे देखो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एफ का जो रिएक्शन आएगा ना, ओके, तो इट इज इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द सरफेस। ओके, ये सरफेस जो है ना, ये सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन उसका काम करेगा, रोलर सपोर्ट का रिएक्शन। ओके, इट विल बी आर एफ। ओके, आर एफ विल बी एक्टिंग इन अ acting at a perpendicular, okay, with the surface guys। तो अभी यहाँ पे और एक चीज मैं आपको शो कर देता हूँ, ये जो एंगल था यहाँ पे, इट विल बी एंगल, 30 डिग्री एंगल है। ओके, तो ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों सरफेस को परपेंडिकुलर जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली वो सेम एंगल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो जब भी वेन एवर यू विल बी राइटिंग डाउन द आरएफ, तो आरएफ के आपको दो कंपोनेंट लिखने हैं, लेटेंगे ना। आरएफ का जब भी मोमेंट निकालेंगे, आरएफ को जब भी कंसीडर करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स में, तो यू हैव टू जस्ट टेक अ टू कंपोनेंट ऑफ आरएफ। इतना हिंट आपको एग्जांपल सॉल्व करने के लिए इनफ है? यस सर। आई होप इट इज इनफ फॉर यू। फिर भी मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करने वाला हूँ, जो स्टूडेंट्स को समझ में आ गया दे कैन स्टार्ट टू ड्रॉ इट, दे कैन स्टार्ट टू सॉल्व इट। पहले एफबीडी ड्रॉ करो एंड जस्ट go through applying the equilibrium conditions and get the values।
Okay, see, yeah. I'm trying a FBD for this. FBD ड्रॉ करूंगा बस, बाकी सब आपको ही सॉल्व करना है. I have observed one thing कि about 20 to 24 students are there in the class. Okay, वो क्या कर रहे हैं कि वो होमवर्क है ना, होमवर्क टाइम पे सबमिट नहीं कर रहे हैं. Homework they have not submitted. I have already make aware you about that. Okay, मैंने already आपको अवेयर भी किया था उसके बारे में. आपको टाइमली सबमिट करना है वो सब. पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी इज एट हियर. ओके, जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम रहेगा ना, तो पहले उसके सब पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने हैं. ओके, तो पॉइंट ई, चलो पॉइंट ई एक्चुअली यहाँ पे हो सकता है उसका, चलो ठीक है, ई का जरूरत भी नहीं है तो उसको मैं अवॉइड कर देता हूँ. पॉइंट एफ इज एट हियर. ओके, चलो, जो फिर पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इनिशियल लेवल वी आर जस्ट पुटिंग द एक्सटर्नल फोर्सेस शोन टू अस. एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि हो गया ये 100 किलोन्यूटन वाला फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट डी. ओके, एट अ एंगल 45 डिग्री इट इज एक्टिंग. ओके, इस मैग्नीट्यूड इज 100 किलोन्यूटन. ओके, तो इसके कंपोनेंट हम लोग को लेना है, दो दैट इज वेरी मच क्लियर टू अस कैसे उसके साथ डील करना होता है. उसके साथ में चलो एट द सेम टाइम आई एम जस्ट राइटिंग द मोमेंट दैट वी हैव टू कंसिडर. ये जो मोमेंट है उसका, ओके, गोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, तो कितना मोमेंट है गाइस? जो इट्स अ 50 किलो न्यूटन मीटर. ओके, जब भी मोमेंट कंसीडर करेंगे तो वी डोंट हैव टू फॉरगेट टू कंसीडर दिस मोमेंट गाइस. ओके, आई एम ऑडिबल गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Thereafter, just after consideration of all the external forces given, we have to just take care of the distributed load. Any kind of distributed load is there? Yes. Here is one rectangular load, and another end there is one triangular load. Okay, let me deal with the rectangular load first. Guys, देखो ये rectangular load है. If someone student didn't get the clear idea how to deal with the rectangular load, just check it at here. Okay, it is acting from A to C. It is acting on the beam from point A to point C. ओके, नाउ चेक करो अभी क्या होगा. रेक्टेंगुलर लोड जब भी कन्वर्ट होता है पॉइंट लोड में, तो उसका पॉइंट लोड एक्ट होता है एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर के सेंटर में. ओके, एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है गाइस? उसका मैग्नीट्यूड होता है जो भी उसका यूनिट 60. लिया है 20 इंटू इट विल बी अ, देखो गाइस यहाँ पे 3 + 60 1 किलोन्यूटन. 480. गाइस एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा 4 तक वो है ना. आपका मिस्टेक नहीं है. इट्स नॉट योर Four. मिस्टेक गाइस. सो इट्स लाइक दिस. ये थोड़ा डायरेक्ट डायमेंशन ऐसे. ओके, ये थोड़ा डायमेंशन ऐसे थोड़ा. ओके, तो गेट इट. ओके, 80 ओके, 80 तो इसका 80 किलोमीटर. किलोमीटर. तो 80 किलो न्यूटन होगा वो. ओके, तो एक्ट कहाँ पे होगा? एक्ट होगा यहाँ पे ए और सी के सेंटर में. ओके, और एक्चुअली डिस्टेंस कितना रहेगा उसका एक्ट होने का? यहाँ से 2 मीटर. ओके, देयर आफ्टर थिंक अबाउट दिस ट्रायंगुलर लोड. ओके, ट्रायंगुलर लोड है यहाँ पे. ओके, ट्रायंगुलर लोड का दूसरा नाम क्या है बेटा? UVL. Uniformly varying load. UVL. Exactly. It's a uniformly varying load. Okay, it's a triangle. Okay, तो ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल का सेंटर कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है ना, लगभग यहाँ पे उसका ट्रायंगल का सेंटर होता है. ओके, जो बेस से जो डिस्टेंस रहेगा उसका, यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा इट विल बी 3 / 3. करेक्ट है गाइस? Yes, sir. यहाँ से वो 1 मीटर के ऊपर काम करेगा. क्लियर है? ओके, व्हाट नेक्स्ट? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? लेकिन यहाँ पे एक्ट करेगा इट तो फाइन है, वी नो इट. ओके, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे जो एक्ट करने वाला है ना? उसका मैग्नीट्यूड होगा 60. 60 हाफ किलोमीटर. इंटू
40 इंटू लेंथ है into उसका 3 क्लियर है गाइस ओके 60 20 इंटू 3 हो गया 60 60 किलोमीटर kilonewton. kilonewton. okay so where it will act at this point okay it will be a how much 60 kilonewton and where it will act ये यहां से मैं इसको शो कर देता हूँ 2 मीटर क्लियर है गाइस यस सर ओके देखो क्या करना है देखो कोई कोई स्टूडेंट का क्या जमलिंग होता है कि सर ये सब डायमेंशन हम लोग यहाँ पे लिख दे क्या देखो नॉट नेसेसरी जितने हम लोग को इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ना वही नोट डाउन कर लेंगे है ना तो हर एक डायमेंशन यहाँ पे लिखते बैठेंगे तो अपना टाइम भी जाएगा और वी मे गेट कंफ्यूज है ना तो बेटर होगा हम लोग ये यहाँ से डायरेक्ट जो भी कंसीडर करना है डायरेक्ट ये मेन डायग्राम में से भी कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पे जितने जो एफबीडी में जितने इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ना वो इंपॉर्टेंट डायमेंशन हम लोग एफबीडी में शो करेंगे ओके इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट फॉर अस while solving the example getting it चलो ठीक है Yes, इसका एफबीडी तो हम लोगों ने लोड तो शो कर दिए now we have to show the reactions okay where we have to put show the reactions at a point B there is a hinge support okay point B जो है ओके यहाँ पे hinge support है गाइस ओके एंड पॉइंट F जो है यहाँ पे रोलर सपोर्ट है ओके तो उसको हम लोग शो कर देते उसके रिएक्शन शो कर देते पॉइंट बी इट इज ऑब्वियसली दो रिएक्शंस आ जाएंगे यहाँ पे अभी यहाँ पे डरना नहीं है आप लोगों को कि सर ये तो हमेशा ए पॉइंट पे आता था अभी बी पॉइंट पे आ गया तो कैसे करने का ओके वर्टिकल हो गया इसका वीबी गेटिंग इट एंड पॉइंट एफ जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे कि उसका रिएक्शन जो एक्ट होने वाला है इट्स इन एंगल इट विल बी आर एफ ओके और एंगल कितना रहेगा वो भी कैसे आएगा एंगल वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया इट्स 30 डिग्री ओके गाइज ओके एक बस आपको हिंट मैं देना चाहूंगा यहाँ पे कि मोमेंट अबाउट बी कंसिडर करो मोमेंट अबाउट बी तो आपका आंसर मोमेंट अबाउट देखो सिंपल यहाँ पे इजीली वी कैन अंडरस्टैंड व्हेनेवर वी आर कंसीडरिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट बी ओनली वन अननोन विल बी देयर दैट विल बी आर एफ ओके बस एक ही अननोन रहेगा यहाँ पे आर एफ ओके बट यहाँ पे दो कंपोनेंट है ना आर एफ के दो कंपोनेंट आएंगे इसका जो ओरिजेंटल कंपोनेंट रहेगा देखो मैं एक्चुअली मुझे बताना नहीं था आपको फिर भी मैं भी आई कैन नॉट स्टॉप मी टू टेल शेयर इट टू यू ओके इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इट विल बी पासिंग थ्रू पॉइंट बी ओनली तो ये क्या हो जाएगा उसका जीरो हो जाएगा ओके तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नथिंग बट द साइन कंपोनेंट है यहाँ पे चेक करो Yes, sir. वर्टिकल कंपोनेंट आएगा RF उसका science 30. कॉस कंपोनेंट आएगा कंपोनेंट ओके तो वर्टिकल कंपोनेंट विल बी आर एफ cos 30 Cos okay 30. so only one unknown will be there while considering the moment so you have to just initially you will get the value of rf okay तो बाकी दो इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट द वैल्यू ऑफ vb and hb also okay very much simple example बस but don't forget to consider this moment इसको कंसिडर करना है मैं एक दो बार इसको कंसिडर करना भूल गया था okay but you don't have to forget otherwise अपना आंसर्स गलत हो सकते हैं गेटिंग इट यस सर इसका सॉल्यूशन में इसके आगे सॉल्व करके दूं आपको या फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये हो जाएगा सर हो जाएगा सर ओके बस लेट मी जस्ट गिव यू द हिंट पहले मोमेंट अबाउट बी निकालो ओके इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ आरएफ ओके सर ये 100 किलोन्यूटन को भी उसको रिजॉल्व करना है ना क्या ये जो ऑब्वियसली डियर 45 ऑब्वियसली 100 किलोन्यूटन के भी दो Yes, कंपोनेंट sir. आएंगे ना यस है ना इसके भी जो दो कंपोनेंट आने वाले एक तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा इसका ओके और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा उसका कौन सा कंपोनेंट साइन साइन ये रहेगा साइन cos component. फर्स्ट Okay. यस तो ऑब्वियसली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पॉइंट बी से ही पास होगा तो उसका मोमेंट नहीं लेना है वर्टिकल कंपोनेंट है साइन कंपोनेंट उसका मोमेंट लेना है
आई थिंक सर अपना आंसर्स क्या यू वांट टू नो द आंसर्स? है? यस सर। ओके देखो, लेट मी चेक। तो मैंने सॉल्व किया है। जस्ट अ मिनट गाइस। बाय द वे कितना वैल्यू मिला आपको आरएफ का? सर एफ का 67 90.47। 67.63 आ रहा है सर आरएफ का वैल्यू। ओके ओके ओके, वेट वेट। सर मेरा 90.47। सर मेरा 54.02 है। आई थिंक राइट नाउ आई एम मिसिंग द सॉल्यूशन। अभी फिलहाल मेरे पास सॉल्यूशन है नहीं इसका। हाँ ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ इसका, so initially you will get a value of RF. It is a 67.63. हाँ सर। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, RF का वैल्यू मिलना है आपको 67.63। ओके, ऑब्वियसली ये आएगा आपका किलो न्यूटन में। पॉसिबल। एंड उसका एंगल तो पता है ना, ये एंगल में ऐसे जाने वाला है। इट इज एक्टिंग इन अ 30 डिग्री डायरेक्शन। ओके, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं है गाइस। ओके, इट विल बी इन अ 30 डिग्री डायरेक्शन। ओके, नाउ व्हाट, उसके बाद में हम लोग को क्या, किसके वैल्यू मिलते हैं? एच ए का वैल्यू मिलेगा आपको 104.53। मिला क्या रे? हाँ सर। ओके, एंड वी ए का वैल्यू मिलेगा आपको 152.14 किलो न्यूटन। एग्जैक्टली 152.14। 14। अच्छा 14, ठीक है, 14 लिख देता। ओके, इट्स नथिंग बट नथिंग द डिग्री, it's a kilonewton. Okay, so you can just get the value of RA also and theta A also. Clear? बस आपको क्या, for completing the example of a beam reaction, you have to just be alert for each and everything and avoid silly mistakes. Okay, silly mistake avoid करोगे and you are getting notified the all the things given in the example, so 101% that 8 marks will be of yours only guys. Okay, 8 marks जो है complete in your hand. Okay, okay, just give me 2 minutes. Let me tell you about your unit test syllabus. Okay, unit test में आपको जो syllabus रहेगा ना, okay, it will be a 3 topics. Okay, first वाला जो topic हम लोगों ने learn किया था, resultant. Okay, resultant of concurrent force system, parallel force system and general force system. Okay, and thereafter second topic will be a centroid and third topic will be a equilibrium. Getting it guys? It, on the basis of these three topic, your unit test 1, okay, we are call it as a internal assessment test 1 will be there. Okay, you got the date of test? नो सर। नो सर। नो नो सर। Okay, just give me a second, I will tell you the dates. Your test will be from in the month of March. Okay, टेस्ट के डेट रहेंगे आपके 4, 5, 6, 4th of March to 6th of March. In a 3 day, your test will be there.
internal assessment one test, matlab you can say on the next Thursday only you are having the test. Okay, नेक्स्ट वाले थर्सडे में आपको वो टेस्ट देना है. तो सर आपको क्या थ्योरी भी करना है है? मैकेनिक्स का. क्या मैकेनिक्स का थ्योरी आई विल नॉट पुट एनी थ्योरी इन द पेपर. ओके, सर थ्योरी रहेगा भी तो Okay. सिंपल वाला क्वेश्चंस रहेगा. सर लिखना है कि एमसीक्यू जाएगा? नो नो नो, चाहे बेसिकली दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू. ओके, तो फॉर what you are supposed to do, you have to just write the answers and you have to make a PDF and upload. You have to make the PDF and you have to just upload it. Okay, जैसे अपना टेस्ट हुआ था ना, the test we have conducted like that only you have to give the internal assessment test. If any changes will be there, surely we will notify to you. Okay, फिलहाल के लिए तो ये डिसाइड हुआ है कि there will be a रिटर्न टेस्ट. आपको मतलब लिखना है, उसको फिर स्कैन करके अपलोड करना है. क्लियर टू एवरीवन? सिलेबस समझ में आ गया? Yes sir. Yes, क्वेश्चन sir. पेपर का पैटर्न Yes, क्या sir. रहेगा? तो in a few days only, 2 to 3 days, I will just tell you the exam paper pattern. Let me have a discussion with all the subject teachers. Okay, then I will tell you the exact question paper pattern. Okay guys, see you in the next lecture. सर ये बीम की प्रॉब्लम सब कुछ ना सिलेबस. एग्जैक्टली बीम के प्रॉब्लम्स भी आएंगे. हाँ, एंड कोई स्टूडेंट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वरिंग अबाउट सर वो असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस हम लोग को थोड़े आप बाउंसर जा रहे हैं, नहीं समझे. ओके, उनके लिए मैं थोड़ा एक क्या व्हाट वी कैन से जस्ट रिलैक्सिंग थिंग्स आई नीड टू टेल देम कि गाइस जो प्रॉब्लम हम लोगों ने लेक्चर्स में सॉल्व किए हैं, है ना, वो प्रॉब्लम अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर out of in your internal assessment test. Okay, no need to worry about कि सर ये असाइनमेंट वाला इक्वेशन नहीं समझा, वो नहीं समझा. ओके, जो लेकिन हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए हैं, लेक्चर्स में जो प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, इफ यू गॉट ऑल द प्रॉब्लम्स देन डेफिनेटली यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने क्लास में सम लिए कि वही सम आएंगे, है ना, लेक्चर में सम लिए वो सम एग्जाम में आएंगे, ऐसा नहीं है. ओके, तो सिमिलर सम्स विल बी देयर, लेकिन वो सेम कंसेप्ट के ऊपर वो सम रहेगा. लेकिन जो क्वेश्चन स्टूडेंट को ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं तो वो टाइप के क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं. ओके, इजीली अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चंस टू एवरी स्टूडेंट, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इन द एग्जाम. ओके, द सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन टू द स्टूडेंट्स. You got the things, guys? Now you are having a break now. Okay, Yes. and today we are having a Yes, sir. basic workshop practice. Okay, at 2:40. Fine. So 2. हाँ yes sir 2:40. हाँ, okay. See you then. Okay, bye. Bye, sir. Thank you. Thank you sir. Yes, sir. Thank you, sir. Bye bye. Yeah, bye.